Hi students, welcome back to our VARC to crack CAT 2025 part 5. So today we'll be talking about reading comprehension. First, we'll talk about few concepts. By concepts, I mean how to attempt which kind of question in reading comprehension, and we'll be doing that with the help of an example. Reading comprehension, all right? Generally, the reading comprehension length Generally, the reading comprehension length that is given in CAT is around 600 to 750 words. On a good day, it can be 550 words as well. Alright. But in general, what CAT says is we give around in between 600 to 500 to 700 words passage. That holds true as well, even if you look at the words, they are within the limits and the range of what CAT says. Okay. So now let us try to see how we'll be attempting reading comprehension questions. All right. First of all, we need to understand what kind of questions there are in reading comprehension. All right. In order to do that, we need to first understand one important aspect, that is, what is the first approach? All right. What is the best approach to attempt a reading comprehension? All right. I personally suggest that you should be attempting reading comprehension after VARC. That means on the D day, that is on the exam day, you should first attempt 8 questions of VA. All right. And then almost 12 to 14 questions of RC. The reason for this is very clear. I'll make myself very clear. So there are certain people who say that you should be attempting RCs first and then go on about attempting VA questions. I suggest that you should attempt VA questions first and then RC, because if you remember, we had discussed that we have only we are to attempt 20 questions for 99 percentile and we have only 2 minutes per question. Correct? So by virtue of this particular time calculation that we have done, in general, if we understand that, if we assume that we have only 4 questions per RC, which is generally the trend that is being followed right now, all right? If it is 4 questions per RC, that means you get 8 minutes to read plus solve, all right? I am assuming on an average, you read in about 3 to 4 minutes and then you give 1 minute to each question. That is, this is a fair presumption that I can have, correct? So what happens here is, after you've spent 4 minutes reading plus 1 minute of first question, that means after 5 minutes, you'll be able to identify whether you'll be able to answer this question or not. Correct? So now many people will say कि नहीं sir, हम तो पहले question पढ़ते हैं और फिर RC करते हैं. But how do you know whether you'll be able to answer the question or not? Because ultimately it depends on the content of the passage. Correct? अब content में क्या है, you cannot, अब वही वाली बात है ना, हम लोग खुदा तो है नहीं, हम लोग भगवान तो है नहीं जो हमको पता होगी content में क्या आने वाला है, right? So in general, आप कितनी भी चीज देखिए, there are many tricks and there's a whole lot of tricks in a bag that a teacher can give you. But ultimately what happens, I've observed is, and I've even discussed this with many of the students, the only tricks that work on the D-Day is related to the reading of the passage. Alright, it does not matter whether you'll first see the questions and then categorize your passage and then you select one passage. It takes time, and time is of the essence in CAT, right? It takes time to do all this, and we only have 2 minutes per question. So we need to understand this particular problem, that if we are unable to do this in a timely manner, see, solving RC is not the big thing. The problem is to attempt it in a timely manner, right? In a particular given time, in the stipulated time, you need to attempt this particular RC. And now when you want to do that,
In order to do that, you need to understand one thing, that वहां पर जाके on D-Day you'll only be reading the passage and then answering. If you have, if you have any doubt with this, please ask around, from people who've given CAT in previous years. All the while they can say is they might have gotten to one question and then see. हमें टाइम कैसे रिड्यूस करना है हम ये भी बात करेंगे. पहले हम नॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ. मेरा मानना ये है कि आप 8 क्वेश्चंस पहले करेंगे. इसमें क्या होता है, वीए पहले अटेम्प्ट करने से फायदा ये है, 2 minutes 1 question. In 2 minutes you'll know whether you are attempting that question or not. You can kill one question in 2 minutes. Here, whether you attempt it or not, that's a different story. Here, you will be killing a question in 5 minutes. That means you will be able to decide whether you are going to attempt that question or not in after 5 minutes. That's a whole lot of time. And if you are unable to attempt that question, then you feel frustrated कि मैंने पूरा passage पढ़ा and I am unable to get this question. I don't know whether I'll be able to attempt the next one or not. Right? That is where the doubt gets created in mind. That is where the doubt comes up in your mind कि भाई मुझसे होगा या नहीं होगा. And having doubt on the D-Day of exam is very problematic. Correct? Now we need to understand, now we know that our sequence of attempting should be VA, RC. Now, many of us would say कि sir VA, RC अलग अलग divided तो नहीं आता. Divided नहीं आता. Agreed. I know that. Right? It is not divided. Correct? Now what should we do? How do we identify कि ये आपका क्या कहते हैं उसका ही VA का ही क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगता है? नो, इट टेक्स ओनली 20 seconds if you only click next on for all questions. It only takes 20 seconds. And I am not asking you to click. No, don't do that. We have brain here, right? Use that. Correct? If you see first question there is RC, you need to click on question number 5 now. You don't need to click next 4 times. Because we know in general there are 4 questions given in RC. अब हम 5वें क्वेश्चन पे जब क्लिक करेंगे, if that is also an RC, now we need to click on question number 9. Because 5, 6, 7, 8 are going to be RC. If 9 is we attempted right then and there. अब आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे? आपको सिर्फ नजर डालते पता चल जाना चाहिए कि RC है या V है. एक चीज याद रखिए, आपकी स्क्रीन जो है ना, consider this as your computer screen. My drawing is a little bad, but still we'll do with it. Alright? ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है जो आपको दिखेगा एग्जाम में. आरसी में क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लाइक दिस. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पैनल और होता है जिसमें देयर आर लॉट ऑफ बॉक्सेस. राइट? ऐसे करके बॉक्सेस बने होंगे वेर इन यू कैन नेविगेट थ्रू द क्वेश्चंस, और यहाँ पर एक नेक्स्ट का टैब होगा. ठीक है? आरसी में क्या होगा, यहाँ पर पैसेज होगा, यहां पे पैसेज होगा और यहां क्वेश्चन होगा. सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज डबल पैनल स्क्रीन. इसमें 2 पैनल्स हैं एक ही स्क्रीन में. इफ देर आर 2 पैनल्स इन द स्क्रीन, दैट इज एन आरसी क्वेश्चन. एंड इफ यू ओनली हैव अ सिंगल पैनल, दैट मीन्स it means if your question is right here in the middle of the panel, that means it's a VA question. अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि VA क्वेश्चन जब हमको पता आइडेंटिफाई हो गया, it doesn't take more than 20 seconds. I think it is better than spending 5 minutes to just choose a passage what I'll do. And believe me, you will take at least, जितने भी लोग बहुत फास्ट रीडर्स हैं, they take at least 5 minutes to solve one passage. At least 5 minutes. At least. And ये मैं उसकी बात कर रहा हूं who is generally a 100 percentiler. Otherwise on an average is 7 to 10 minutes. Right? 7 to 10 minutes है. That is why I suggest कि 8 minutes में complete करिए ना. हम लोग एवरेज में भी आएंगे लेकिन ऊपर वाले एवरेज में आने की कोशिश करते हैं. Try to read it fast enough, and how we'll do that we'll also see. Correct? तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया, हमको तुरंत सॉल्व किया, 2 मिनट में हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है? क्लिक किया. अच्छा, एक और चीज, टीटा क्वेश्चंस. एक चीज याद रखिए, आप किसी भी भगवान में आस्था रखते हो नहीं रखते हो, जो भी है, इफ यू बिलीव इन आफ्टर लाइफ, बिलीव मी, टीटा छोड़ना हमारे लिए नर्क में जाने के बराबर है.
ठीक है, घोर अपराध है ये टीटा क्वेश्चन छोड़ना। अब देर आर मेनी टीचर्स, मेनी एनालाइजर्स विल से कि नहीं, टीटा इज अ हनी ट्रैप, टीटा इज अ हनी ट्रैप। Since it has no negative marking, it's a honey trap. It's a little trickier question than the others. I also agree that. But you need to practice in a manner, आपको उस चीज पर फिक्सेट नहीं करना कि ये नॉन नेगेटिव मेरे को करना ही करना है। ऐसा होता है जनरली, टीटा क्या है, ऑड सेंटेंस और पैराजंबल, करेक्ट। पैराजंबल में ऑर्डर होना चाहिए था 2 3 1 4, करेक्ट। आपका आ रहा है 2 3 4 1। You have doubt in these two, correct, and there's no way there that you can solve this doubt, correct। एक ही तरीका है कि you read that, give it a read twice, 2 बार पढ़ के देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख कर आइए। बिकॉज फर्ज करके चलते हैं कि देर आर 4 क्वेश्चंस टीटा, ऐसा होगा नहीं, बट देर आर 4 क्वेश्चंस इन टीटा, इनमें से एक भी सही हो गया तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3। और अगर हम चारों छोड़कर आ गए तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। और अगर हमारे चारों गलत भी हो गए तो भी हमारे मार्क्स कितने मिलेंगे, 0, कटेंगे भी नहीं। इसका ये फायदा है। सो टीटा हैज टू बी अटेम्प्टेड इन अ टाइम, इन द स्टिपुलेटेड टाइम। 2 मिनट का टाइमर रखिए अपना, 2 मिनट से ऊपर जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इट हैपेंस भाई, छोड़ने पे भी 0 मार्क्स ही है ना, अटेम्प्ट करोगे गलत हो गया तो भी 0 है। गलती से फ्लूक लग गया, यहां पर फ्लूक वाली बात आती है, अगर गलती से फ्लूक लग गया 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टीटा कभी नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखिए, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस आप जैसे जैसे 2 मिनट में करते जाएंगे, उसको किल करते जाएंगे, आपके वीए खत्म हो जाएगी। अब होता क्या है, अब सर हम आरसी वापस ढूंढेंगे कैसे, हमने कोई वीए क्वेश्चन छोड़ दिया, पैरा कंप्लीशन आया था, हमको नहीं आया, हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर याद रखना जो आपने छोड़ दिया। उसके अलावा ऐसा होता है, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप, वो आपका रेड मार्क हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है वो, ठीक है। नाउ यू नो आरसी कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 4 4 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जो भी अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। उसके बाद जो भी रेड है उसको देखिए, बात खत्म। सी इट इज ऑल लॉजिकल, हमको प्रैक्टिस इसी चीज की करनी है, जो मॉक्स हम देंगे। सी एक चीज याद रख लीजिए, वी शुड हैव एन एम ऑफ 40+ मॉक्स। रीजन, 10 to 15 गो इनटू अंडरस्टैंडिंग द पैनल एंड स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी हम रखेंगे, ठीक है। इट हैपेंस कि हम क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे और क्या पैनल कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, 10 से 15 मार्क्स चलेगा। तो इफेक्टिवली यू विल बी गिविंग ओनली 25 मार्क्स, वेयर एज इफेक्टिवली यू शुड गिव 30+ मार्क्स। 100% आइलर से पूछिए, दे हैव गिवन 30+ मार्क्स इफेक्टिव, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, करेक्ट। दूसरी चीज, अब सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा है मॉक में, शुरुआत में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं शुरुआत में नहीं आएगा, यहां तक स्कोर नहीं आएगा, लेकिन यहां के बाद आपका स्कोर इंक्रीज होना स्टार्ट होना चाहिए। It should start increasing, right? Why? Because now you know the strategy that you have to adopt while attempting the question, right? जब आपको mock attempt करोगे तो आपको आपकी strategy पता है, now your score should steadily increase, and जो आपके आखिरी 7 से 8 mock का एक score होगा, उसका average will be your stabilized score, और स्टेबलाइज स्कोर के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपका स्कोर कैट वाले दिन क्या रहने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि सर हमने आरसी अटेम्प्ट की, लेकिन जैसा हमने पढ़ा था वैसा हमको नहीं समझ आया, अब हम क्या करें, ठीक है। पहली चीज मेरा एक मानना है, देखिए आरसी पहले ना अटेम्प्ट करने का एक और कारण है कि आप जब आरसी पढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन ना आए ना, होता क्या है, जनरली बोला जाता है आरसी में आंसर वहीं की वहीं है, वहीं देखना है आपको, तो यू गेट फिक्सेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हम अड़ जाते हैं कि अरे यार आंसर है, मेरे को दिख कैसे नहीं रहा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हो सकता हूं, मुझे आंसर दिखेगा दिखेगा, आप बार बार पढ़ते हैं, यू गेट फिक्सेटेड, मोर टाइम गोज देयर इन आरसी। अगर डाउट है करके देखिए, आपको पता चलेगा, राइट। ट्राई, सी आई डोंट से कि आप मेरी ही बात मानिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है वेरी गुड, किसी और की स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है वेरी गुड, बट if you're not scoring because of all those strategies, please follow mine at least for 6 mocks,
देन यू विल रियलाइज कि स्ट्रैटेजी काम की है या नहीं. ठीक है. आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू स्कोर सिंगल डिजिट have now, increased their marks to 30 plus in VRC, and 30 plus is, we know, it's 95 percentile, right? 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर पर आ गए हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि अगर आप मॉक्स में जितना स्कोर कर रहे हैं 5 परसेंटाइल उससे ऊपर लेकर ही चलते हैं हम कैलकुलेशन वाइज, राइट. आर अल्टीमेट गोल इज टू स्कोर 99 परसेंटाइल. सी, मैंने आपको पहले ही बोला था, माई ऑडियंस इज नॉट द highly polished English speaking people. No. My audience for me is the people, the students, the aspirants who are average in English. I want to give them something so that they understand how they can easily crack CAT. They are good in maths, they are good in LR, लेकिन they are falling behind on VA. राइट. VRC में प्रॉब्लम आ रही है, RC समझ में नहीं आ रहा, VA समझ में नहीं आ रहा, पढ़ के बहुत देखा, 10 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं. नो प्रॉब्लम. वॉच दीज वीडियोज डिलीजेंटली एंड यू विल गेट टू योर स्कोर. गिव मॉक्स. प्रैक्टिस इज द की. स्टार्ट रीडिंग. ठीक है. अब आते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट पर RC के, जिससे सबको समस्या है जिस चीज से, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी, राइट. अब वोकैबुलरी कैसे ठीक की जाए? वोकैबुलरी ठीक नहीं होती, वोकैबुलरी बिल्ड की जाती है. वोकैबुलरी ठीक नहीं होती, वोकैबुलरी बिल्ड की जाती है, एंड वोकैबुलरी टेक्स टाइम टू बिल्ड. ठीक है. इसके लिए आपको इंडल्ज करना है दो चीज़ों में. दो चीज़ों में इसलिए इंडल्ज करना है बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर वोकैबुलरी. उसके अलावा वोकैबुलरी के लिए मेरे हिसाब से मैं किसी और कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता हूं. पहली चीज, रीडिंग. रीडिंग का रीजन ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक. सेकंड इज राइटिंग. राइटिंग इज व्हाई? बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड्स. अब देखिए ये दोनों चीजें काम कैसे करती हैं. आपने पहले रीड किया आराम से, you've done your reading, ठीक है, you've identified the kind of words that are problematic to you, you'll have a list of words, right? उस वर्ड का मतलब देखिए, उसके सिनोनिम्स देखिए. अब आपको सिनोनिम का करना क्या? आप सर सिनोनिम देख लिया, हमने पढ़ लिया, कभी याद नहीं होगा, भूल जाओगे. करना क्या है? वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया, सिनोनिम देख लिया, मीनिंग देख लिया, मीनिंग समझ लिया अच्छे से. अच्छा, कई बार क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल. कॉन्टेक्चुअल मतलब हाउ इट इज बीइंग यूज्ड एंड वेयर. ठीक है. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मतलब हाउ इट इज बीइंग यूज्ड एंड वेयर. फॉर एग्जाम्पल, igniting the spark of thought in pupils. अब आप वहां चिंगारी तो नहीं जला रहे हो, राइट? दैट इज अ मेटाफोरिकल सेंस. मतलब कि एग्जेम्प्लीफाई करके आपको बताया जा रहा है कि चिंगारी जैसे भड़कती है, जैसे चिंगारी उठाई जाती है, वैसे ही आपने लोगों के अंदर एक स्पार्क इग्नाइट किया, लोगों के अंदर चिंगारी उठाई. करेक्ट, राइट. अगर लिटरल वे में इसको लेने लगे तो भाई लोगों के अंदर आग लगाना इज अ रॉन्ग थिंग, राइट. लिटरली वो नहीं करना चाहिए, गलत चीज है. ओके. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी नीड टू डू. वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया आपने, सिनोनिम देख लिया, उसका मीनिंग समझ लिया. अब आपको क्या करना है? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी देखिए उसका कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है. अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू राइट अ सेंटेंस using the word. Okay. Now दूसरी चीज, 2 sentences और लिखिए खुद से, using that particular word. ठीक.
दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ राइटिंग आपका आएगा कहां पे, समरी राइटिंग में। समरी राइटिंग, सर लोग रीडिंग रीडिंग बोलते हैं, आप ऐसे मिले हो जो राइटिंग राइटिंग बोल रहे हैं। राइटिंग इसलिए बोल रहा हूं, आप राइटिंग कर लीजिए, स्पीकिंग कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। स्पीकिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ यू नो people you have around you, and I encourage my students to even talk to your friends in English. Your English gets better, reason you'll score, you'll get to know, you'll understand the RCs better, right? Moreover, you'll be able to perform better in GDPI, group discussion, personal interview, and there is one thing called as writing ability test. तो ये VAT जो है ना, इसके लिए यहाँ से प्रिपरेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली। भैया एक तीर से दो निशाने लगाएं तब तो बात समझ आए, वरना तीर चला के फायदा क्या, ठीक है। एक तीर से जब तक दो निशाने ना मारें तो वो तीर बेकार है आज के समय में। कारण यहां पर आपकी समरी राइटिंग से आपको क्या फायदा होगा वो अभी बताएंगे, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिए GDPI VAT पर आपकी समरी राइटिंग का फायदा पड़ता है, आपको कैसे पड़ेगा अभी बताएंगे। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग से आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स करना है, वर्ड्स आइडेंटिफाई करके सिनोनिम देखना है, मीनिंग समझना है। यू हैव टू राइट वन सेंटेंस एंड यू हैव टू राइट 2 more sentences on your own on next day, so that to see whether you remember the meaning of the word or not, all right। And second part में you'll have to write the summary of the passages that you are reading। रीजन फॉर दैट इज, उसका रीजन है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, धीरे पढ़ पाते हैं, स्लो पढ़ पाते हैं, क्या करें। उसका सिंपल सा तरीका है, समरी राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। समरी राइटिंग क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। समरी राइटिंग इज समथिंग दैट इज अडॉप्टेड यू नो throughout places, and it is also recommended by many people. You can watch on YouTube itself that it's not just me who is telling this. You can see that there are many teachers who recommend this particular method. So what you need to do is you'll read the passage, all right। People, अब now हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो आप अपने हिसाब से, मैं 2-3 तरीके बता दे रहा हूँ। पहला तरीका ये, आपने पैसेज पूरा पढ़ा 600 वर्ड्स का, आराम से पढ़िए, सो टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू पुट टाइमर। सो दिस इज ओरिजिनली दिस इज अ 30-day प्लान, बट विल कन्वर्ट दिस इनटू, एक काम करते हैं कि हम इसको 15-day प्लान कर लेते हैं। हाउ, अभी बताते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर द फर्स्ट 5 days, for the first 5 days, yes, for the first 5 days you have to read 2 passages per day and write summary of that passage। करना क्या है, आप पैसेज पढ़िए in your own time। so first plan, first 5 days, right, read without time limit, but नोट योर टाइम, ठीक है। कोशिश करिए कि जल्दी पढ़ें, लेकिन आराम से पढ़िए कि आप चीज़ों को समझ पाएं, चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हो पाए। सर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, रिटेन नहीं कर पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। एक चीज़ याद रखिए, हमको मूवीज़ के डायलॉग हमेशा याद रहते हैं। याद रहते हैं कि नहीं रहते? यस, हमेशा याद रहते हैं मूवीज़ के डायलॉग्स। तो हमको करना क्या है, हर पैसेज की कहानी बना लीजिए, स्टोरी बना लो हर पैसेज की। उसने बोला, इसने बोला, उसने कौन, ऑथर, बात खत्म। आपको स्टोरी बना लेनी है पैसेज की, स्टोरी बनाइए और आप अपने टाइम में पढ़िए, लेकिन अपना टाइम नोट करिए, बिकॉज इट विल हेल्प फॉर द सेकेंड 5 days। देन राइट योर समरी ऑफ द होल पैसेज, ठीक है। राइट समरी ऑफ योर होल पैसेज, ओके। अब आपने कर लिया, 5 दिन कर लिया। आप देखेंगे कि 5 दिन में ही, दैट मीन्स यू हैव डन 10 पैसेजेस, करेक्ट। 10 पैसेजेस। इफ यू हैव मोर टाइम, सी मैं इससे ज़्यादा टाइम इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट टू टेंड टू एज वेल, और इंग्लिश में ही आपके पास VA भी है, राइट। अगर आप 10 से 12 घंटे दे रहे हैं कैट के लिए,
तो आई सजेस्ट 4 hours ईच फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? अब 4 घंटे इंग्लिश के लिए दे रहे हो आप वीआरसी के लिए, तो आई थिंक कि 2 घंटा पैसेज इज फाइन एंड 2 hours वीए इज फाइन, राइट? 2 पैसेजेस किया आपने, समरी लिख ली। अब उस समरी को चेक करिए, चेक इन द सेंस यू हैव टू सी कितना मैच कर रही है। अब याद करिए वोकैबुलरी वाला पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज ऑफ वोकैबुलरी। जब आप समरी लिखेंगे ना, यूज वर्ड्स फ्रॉम योर वोकैब, ठीक है? यूज वर्ड्स फ्रॉम योर वोकैब। अब यहां पर होगा क्या, देखिए आप याद करिए, मैंने आपको पैरा समरी में बताया था इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, नहीं समझ में आता, उसका कारण है, उसका कारण ये था आप यहाँ पे स्टोरी बनाएंगे अपने लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, आप फिर अपने नेटिव लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द समरी। दैट इज हाउ दिस विल गो, राइट? अब जब ये ऐसा होगा तो अब हमको क्या करना है, वोकैब यूज करनी है। अच्छा, वोकैब के लिए आप एक छोटी सी 50 पेज की कॉपी बना लीजिए अलग, उसमें आप नोट कर लीजिए। देखिए, द डे यू हिट 500 वर्ड्स, द डे यू हिट 500 प्लस वर्ड्स, समझिएगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिलीव मी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड आपको कोशिश ये करनी है जो भी वर्ड्स आप वोकैबुलरी में यूज आपने लिखे हैं उनको यूज करें, बिकॉज द मोर यू यूज द वर्ड्स यू विल रिमेंबर देम, राइट? एमास्कुलेट, एम्यूलेट, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, राइट? एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लोग दैट आर वेरी कॉमन बट स्टिल, राइट? आपने ये कर लिया, डू दिस फॉर फर्स्ट 5 days एंड यू विल नोटिस कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो गई है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो आप टाइम नोट कर रहे हैं, दिस इज गेटिंग लेस एंड लेस डे बाय डे। नाउ सेकेंड 5 days, इस स्टेज को मैं बोलता हूं मीटर्ड स्टेज। मीटर्ड स्टेज का मतलब आपके पास एक मीटर होगा जिसको कहते हैं टाइमर, ठीक है? नाउ यू हैव टू बिल्ड अ टाइमर। कैसा टाइमर? यहां पर जो आपका एवरेज टाइम निकला था ना, उससे 4 मिनट कम कर दीजिएगा। उससे 4 मिनट कम इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर आई नो कि यू विल टेक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, ठीक है? बट ऑन एन एवरेज ऐसे मान के चलिए कि जस्ट टू रीड 15 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करिए फर्स्ट डे, राइट? हर दिन 1 मिनट कम कर दीजिए, एवरी डे 1 मिनट कम कर दीजिए, या फिर हर पैसेज के लिए 30 सेकेंड्स ड्रॉप कर दीजिए। फॉर एवरी पैसेज ड्रॉप 30 सेकेंड्स, द एक्सरसाइज रिमेन सेम, 30 सेकेंड्स ड्रॉप कर दीजिए। अब होगा क्या कि 5 दिन में, भाई पहले दिन 15 था, दूसरे दिन 14, 13, 12, 11 मिनट पर आ गए हम लोग। अब आते हैं हम थर्ड 5 day, राइट? दिस इज कैट लेवल। अब आ गए हम कैट लेवल पे, ठीक है? यहां 11 मिनट पर आ गए थे हम, लेकिन अब हमको शुरू करना है 10 मिनट से, 10 minutes and 10, 9, 8, 7, 6। कोशिश करिए कि आपकी रीडिंग ऐसी हो जाए कि आप उसको 5 से 4 मिनट के अंदर ला पाएं। रीजन है कि जब 6 मिनट्स आपका टाइम हो जाएगा टू राइट, मतलब कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप स्टोरी लिख पाएं, तो आप इमेजिन करिए वहां पर आपको लिखना नहीं है। दैट मीन्स योर टाइम विल गेट ड्रॉप टू 3 to 4 minutes. And believe me, it's a calculated time. There was a passage, I explained that line by line, हिंदी कन्वर्ट कर करके बताया अपने स्टूडेंट को, but I did not lose the speed. We clocked the time of 5.5 minutes. 5.5 मिनट में अगर हम किसी को इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके बता पा रहे हैं, राइट, पूरा पैसेज, देन आई बिलीव दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अचीवेबल है, बट इट टेक्स ग्रिट, मेहनत लगेगी, राइट? इट टेक्स डेडिकेशन टू डू दिस। तो एक चीज याद रखिए, दिस इज अ 15 day प्लान। नाउ सम पीपल हैव कि सर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ के याद नहीं रख पाते, हम तो पैराग्राफ वाइज चलेंगे, हम पैसेज वाइज नहीं, पैराग्राफ वाइज करेंगे, तो यू विल हैव टू गिव 20 days।
क्यों कि ये सब सेम रहेगा। इससे पहले 5 दिन आपको पैराग्राफ से पैसेज पे आना है। दैट मीन्स फर्स्ट डे एक पैसेज में आप एक पैराग्राफ पढ़ के करेंगे, सेकेंड डे 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तीसरे दिन 4 पैराग्राफ पढ़ेंगे, चौथे और 5वें दिन पूरा पैसेज पढ़ेंगे। नो टाइम लिमिट, नथिंग। यहां पे आपको टाइम नोट करने की जरूरत ही नहीं है फॉर द फर्स्ट 5 डेज। आज से शुरू करिए, दिवाली तक हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। यू विल हैव 1 मंथ्स टाइम टू कैट। ठीक है, तो दिस इज योर वोकैबुलरी। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। दैट मीन्स नाउ वी विल सी कि भाई अगर फिर भी रिटेंशन नहीं बढ़ पा रहा क्या करें। सर हम क्या करते हैं, हम पहला पैराग्राफ पढ़ा समझ आ गया, सेकंड पैराग्राफ पढ़ा समझ आ गया, दोनों का कनेक्शन समझ आ गया, थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, सेकंड थर्ड का कनेक्शन समझ आ जाता है, फर्स्ट टू सेकंड का भूल जाते हैं। करना क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। अब होगा क्या, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, राइट ओनली 2 लाइन्स। अच्छा, यहां पे आपको रीडिंग स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी इस वाले प्रोसेस के लिए, बिकॉज सी इफ यू आर लूजिंग आउट ऑन वन एस्पेक्ट यू हैव टू गेन ऑन द अदर। अगर हमें रिटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है एंड इफ वी आर टू राइट देन वी हैव टू रीड अ लिटिल फास्टर सो दैट वी कैन कवर अप द टाइम। 2 लाइन्स फ्रॉम 1 पैराग्राफ, एरो बनाया, 2 lines again but in a manner that it connects with the previous paragraph. Same, do that. Okay, even if you take 4 minutes and then after 1 minute for each question, believe me your all answers will be bang on. सही होंगे, accuracy 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, गलत होने का चांस ही नहीं है, गलत होने का चांस ही नहीं है। ओके, सो ये चीज याद रखिए, दिस इज हाउ यू increase your time, this is how you solve your retention problem. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं एंड देन विल सी। सो दिस इज अ पैसेज, देखिए एक ठीक ठाक बड़ा पैसेज है हमारे पास, दिस इज हियर, दिस इज हियर, दिस इज, और यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट सुना होगा, मेन आइडिया सुना होगा, कंक्लूजन सुना होगा, अजम्पशन सुना होगा, लेकिन इन सब के मतलब क्या है, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, पैरा समरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट डिड आई प्रिज्यूम बिकम्स माई अजम्पशन। दैट मीन्स मेरे दिमाग में क्या चल रहा था किसी टॉपिक को लेके, वो मेरा अजम्पशन बना, उसके बारे में मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए। ठीक है, उसको एनालाइज किया ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि मेरा अजम्पशन कुछ था तो मेरा ओपिनियन बना एनालिसिस के बाद, दैट इज द आर्ग्यूमेंट, और अल्टीमेटली मैंने कंक्लूड किया। राइट, अब एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि मेरा अजम्पशन ए था तो मेरा कंक्लूजन ए जैसा ही होना चाहिए, वो बी नहीं हो सकता। जैसे कि इफ माई assumption was to prove AI will not eat human jobs, मुझे अचानक से ख्याल आया कि AI will not eat human jobs and I need to write a passage about it। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए, मैंने एनालिसिस किया, मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, एंड अल्टीमेटली व्हाट आई से, बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स, राइट, बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स एंड involvement of human in AI's growth, AI can never fully eat human jobs. See,
ये मेरा कंक्लूजन है जो मैंने पैसेज से, फैक्ट्स के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, अपने आर्ग्यूमेंट से निकाला, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये थोड़ा थोड़ा इसके जैसा है, करेक्ट। अब अजम्पशन वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि अब अजम्पशन कैसे निकालें, जनरली मान के चलिएगा कि अजम्पशन आपके कंक्लूजन जैसा दिखेगा लेकिन सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए जितने अजय देवगन मार्केट में घूम रहे हैं जो हम मीम्स पर देखते हैं वो अजय देवगन जैसे दिखते हैं लेकिन अजय देवगन नहीं है, राइट। सिमिलरली जितने सलमान खान बने घूम रहे हैं मार्केट में, दे माइट लुक लाइक सलमान खान बट दे आर नॉट सलमान खान, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो जो भी मेरा कंक्लूजन जैसा अजम्पशन दिखेगा दैट शुड बी माई आंसर फॉर अजम्पशन, ठीक है। क्यों, इसका कारण है इसमें क्या लिखा है मैंने, बिकॉज ऑफ certain aspects and involvement of human in AI's growth, AI can never fully eat human jobs. यहाँ पर क्या लिखा है, AI will not eat human jobs. अगर मैं अपने कंक्लूजन को इन्वर्ट कर देता हूँ, इन्वर्ट मतलब मैं गलत कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इन AI's growth, AI will fully eat human jobs. अगर मैंने कंक्लूजन ये कर दिया तो क्या मेरा अजम्पशन सही था? मेरा अजम्पशन ही गलत था ना, राइट? मेरा अजम्पशन ही गलत था। दैट मीन्स मैंने जो सोचा था वो ही गलत था। क्यों? क्योंकि मेरा कंक्लूजन गलत आ रहा है। तो मेरा कंक्लूजन और मेरी जो सोच थी शुरुआत की वो मैच करनी चाहिए, दैट इज नेसेसरी। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक मैं कह नहीं पाऊंगा कि आई वॉज राइट इन अज्यूमिंग समथिंग, राइट? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा दैट योर अजम्पशन एंड कंक्लूजन गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा दो चीजें और समझिए। हमने एक चीज देखी कंक्लूजन, ठीक है। आपने एक और वर्ड सुना होगा इन्फरेंस। कॉम्पिटिशंस के लिए कंक्लूजन और इन्फरेंस को एक बता दिया जाता है लेकिन ये एक चीज नहीं है, आपको समझना जरूरी है। रीजन, कंक्लूजन इज गिवन बाय ऑथर, गिवन बाय पैसेज लिखेंगे हम, ऑथर नहीं पैसेज, ठीक है। अब पैसेज ऑथर ने दिया है तो अब मान के चलते हैं, ठीक है। इन्फरेंस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस, करेक्ट। अब होता क्या है, कैट ऐसा क्वेश्चन देता क्यों इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इसलिए देता है कैट कि कंक्लूजन जो सेंड आउट करना चाहता था ऑथर, क्या आपने उसी तरीके से समझा या नहीं, राइट? तो इसलिए इन दोनों को इनवर्सली यूज कर लेते हैं लोग, जबकि यूज होना नहीं चाहिए। बिकॉज फॉर इन्फ्रेंस यू हैव नो बाउंडेशन, यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग इन एनी मैनर। अब वहां पर क्या, एग्जामिनर तो आपको 4 चॉइस दे रहा है ना, सो यू आर बाउंड बाय दोज 4 चॉइसेस। दैट मीन्स यू नीड टू क्लिक योर हेड अगेंस्ट द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज एंड डिराइव योर आंसर फ्रॉम दोज 4 ऑप्शंस। ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो दैट इज वाई कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस माइट ऑल्सो बी ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। याद रखिए ये चीज। तो हमेशा इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्फरेंस में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, अजम्पशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने देखा होगा, strengthening questions and weakening questions. Strengthening questions and weakening questions. अब स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन और वीकनिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं बताते हैं। स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन में जनरली ये आता है कि एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट था, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। स्ट्रेंथन करने का मतलब है सपोर्ट देना। एक डिबेट चल रही थी, उसको स्ट्रेंथन करना, दैट मीन्स यू गिव सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 बिल्कुल ऑपोजिट ऑप्शन होंगे, वो हम हटा देंगे, 2 सिमिलर जैसे ऑप्शन, मतलब दोनों ही सपोर्ट देने, लेकिन दोनों में से ज्यादा सपोर्ट कौन दे रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्टेक्स्ट पे। दैट मीन्स थीम को कंसिस्टेंट रखते हुए सपोर्ट कौन देगा,
ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, रीइफाई, सॉलिडिफाई, राइट, रीइंफोर्स, ये सारे वर्ड्स जब भी आप क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल रीइंफोर्स द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ऑथर इज नथिंग बट अ स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं हम वीकनिंग पर। वीकनिंग पर जनरली एक ही सिनोनिम है जो यूज होता है, दैट इज अंडरमाइन। अंडरमाइन, ठीक है, अंडरमाइन करना है, दैट मीन्स उसको वीक करना है, मतलब उसके ऑपोजिट बात करनी है। ऑपोजिट बात करनी है तो मेरे हिसाब से आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए कि भैया इससे तो वीक नहीं होगा, इससे वीक नहीं होगा। अच्छा, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स दैट आर न्यूट्रल। अब वो काम कहाँ आते हैं ये बताता हूं। वो काम आते हैं, ऑल द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमको क्या करना है, हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या ये अंडरमाइन कर सकता है, कर सकता है, टेक। सेकंड स्टेटमेंट क्या ये अंडरमाइन कर सकता है, टेक। थर्ड स्टेटमेंट क्या ये अंडरमाइन कर सकता है, नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या ये अंडरमाइन कर सकता है, टिक। तो ऑड वन आउट इज ऑलवेज द आंसर, सो आंसर सी, ऑप्शन सी विल बिकम योर आंसर। अच्छा, एक और चीज है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में आपको अगर क्वेश्चन ना समझ आए और आपको लगे कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, ऑप्शंस पढ़ लो। इफ 3:1 का रेशियो बन जाए 4 ऑप्शन में तो 1 इज ऑलवेज द आंसर, याद रखिए। मतलब कि भाई 3 चीजें पैसेज में अवेलेबल हैं, एक चीज अवेलेबल नहीं है और एक ही ऐसी चीज है, तो दैट बिकम्स योर आंसर। क्वेश्चन आते हैं ना which one of the following is or can be inferred from the passage except, right? या फिर which one of the अच्छा ट्रिक, यहां पर भी ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं। which one of the following cannot be inferred from the passage except, it means दो नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव क्या बनते हैं, पॉजिटिव। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज इन द पैसेज, ठीक है। नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन हमारी आंखें ओवरलुक कर जाती हैं, जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये नहीं करना है। आपको चाहे अपना पेन स्क्रीन पे रख के ऐसे करके पढ़ना पड़े, पढ़िए, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, सो दैट यू डू नॉट लूज आउट द लाइन फ्रॉम वेयर यू वर रीडिंग, ठीक है। आगे अब क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के आते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले जो क्वेश्चंस है वो हो गए क्रिटिकल रीजनिंग के आपके। इसके अलावा हो गया आपका कंक्लूजन, अजम्पशन, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, दैट मींस वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एक स्टेटमेंट से जो कि पैसेज में होगा, या फिर बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द 4th पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ठीक है। दूसरी चीज, इन्फ्रेंस बेस्ड में यही क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। तो दो तीन टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, चाहे आप इनकी सब कैटेगरीज कितनी भी बना लें। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम लोग समझ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता क्या है पहले वो समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका होता क्या है। कि पैराडॉक्स इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। पैराडॉक्स इज अ प्रॉब्लम, व्हाट, लॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है पैराडॉक्स। इसको रिजॉल्व करना होता है, तो हमेशा ना आपको पैराडॉक्स रिजॉल्व करना होता है, तो रिजॉल्विंग पैराडॉक्स करके टॉपिक होता है हमारा। अब पैराडॉक्स रिजॉल्व कैसे होगा, पैराडॉक्स है क्या पहले तो, occurrence of event A should lead to occurrence of event B. This is supported by law, theory, something. But instead, occurrence of event A leads to occurrence of event C. इसका रीजन देना होता है, बात खत्म। पैराडॉक्स सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं,
तो मार्केट में क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ों की सप्लाई बढ़ती है तो आपके पैसे डाउन, पैसे कम होते हैं, करेक्ट। अब अगर किसी एक एरिया में मैंगो के सीजन में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जबकि पूरे एरिया, मान लेते हैं कि पूरे सिटी में 100 रुपए केजी मैंगो बिक रहा था, अब पूरे सिटी में से सिर्फ एक एरिया में क्या हुआ, मैंगो 200 रुपए केजी बिकने लग गया, राइट। सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस कम होना चाहिए, प्राइस ज्यादा क्यों हो गया, उसका हमको रीजन देना होता है। जो हम रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे वो हमारा पैराडॉक्स सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। लोगों ने कंफ्यूजिंग बना रखा है, कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि हमने लॉजिकल प्रॉब्लम की बात की तो देर इज ऑल्सो वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। अब फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट यू नीड टू फाइंड द लॉजिकल फैलेसी। आपको लॉजिकल फैलेसी ढूंढनी होती है आर्ग्यूमेंट में, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे होंगे या ऑथर के आर्ग्यूमेंट की बात चल रही होगी, तो उसमें आपको एक लॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ बड़ी चीजें नहीं है। चलिए एक जल्दी से एक आरसी सॉल्व करते हैं। पहले तो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं कि पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हम लोग 4 क्लासेस साथ में गुजार चुके हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पर इंग्लिश आ रही है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हमको थोड़ी तेज करनी जरूरी है हमारे लिए। अ रनअवे ट्रॉली इज हेडिंग डाउन द ट्रैक्स टुवर्ड 5 वर्कर्स who will all be killed if the trolley proceeds on its present course. Adam is standing next to a large switch that can divert the trolley onto a different track. The only way to save the lives of 5 workers is to divert the trolley onto another track that only has 1 worker on it. If Adam diverts the trolley onto the other track, this 1 worker will die, but the other 5 workers will be saved. ठीक है? क्या कह रहे हैं? एक रनअवे ट्रॉली है, मतलब कि जो ट्रॉली चलती है पटरियों पे छोटी सी, वो ट्रॉली है, वो कहाँ जा रही है? वो 5 लोगों की तरफ बढ़ रही है। अगर वो उसी रास्ते पर रही तो वो 5 लोग मर जाएंगे, हो सकता है उसके अंदर वेट होगा, जो भी है। एडम वहां पर खड़ा हुआ है, एडम के पास एक बड़ा सा स्विच है। एडम अगर उस स्विच को क्लिक करता है या दबाता है या मूव करता है तो वो ट्रॉली एक दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट हो जाएगी, और दूसरे ट्रैक पर आगे चलकर एक व्यक्ति खड़ा है, वो मर जाएगा, लेकिन 5 लोग बच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और स्ट्रैटेजी है रीड करने की। ये इतना बड़ा पैराग्राफ था, हमने इतनी सारी अंग्रेजी पढ़ी। अगर मैं इसमें से कुछ वर्ड्स हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल ए इज द हु देखिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स हटा दिए इसमें से, जो कि पढ़ने में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पढ़ता हूँ कि क्या हमने पढ़ा। रन अवे ट्रॉली हेडिंग डाउन ट्रैक टुवर्ड्स 5 वर्कर्स विल बी किल्ड इफ trolley proceeds present course. Adam standing next large switch that divert trolley different track. Way save lives of 5 workers
to divert trolley another track only has one worker. ठीक है, आगे if Adam diverts trolley other track, one worker die but 5 workers saved. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़े जो हमारी स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो फिलर्स जिसको बोलते हैं वो हमने हटा दिए. एक ये भी तरीका होता है रीडिंग का, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो मेरा मानना है कि जब हम जल्दी पढ़ते हैं और फिलर्स छोड़ देते हैं तो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा फर्क पढ़ता नहीं है. लोग बोलते हैं कि 70 वर्ड्स थे, 70 वर्ड्स में से 37 वर्ड रह गए, लेकिन जो 35 वर्ड्स थे या 33 वर्ड्स थे, कई बार उनमें भी इंफॉर्मेशन छुपी होती है. इट टेक्स प्रैक्टिस. और अभी वी आर ओनली एंड ओनली, यू नो, आई विल से वी आर ओनली 45 डेज अवे फ्रॉम कैट. क्यों? क्योंकि फेस्टिवल है. तो 15 दिन तो भाई घर की साफ सफाई करनी है, दिवाली मनानी है. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. Now consider a slightly different version. A runaway trolley is heading down the tracks towards 5 workers who will all be killed if the trolley proceeds on its present course. Adam is on a footbridge over the tracks in between the approaching trolley and the 5 workers. Next to him on this footbridge is a stranger who happens to be very large. The only way to save the lives of the 5 workers is to push this stranger off the footbridge and onto the tracks below, where his large body will stop the trolley. The stranger will die if Adam does this, but the 5 workers will be saved. अब क्या है, दूसरा वर्जन देखते हैं. वही ट्रॉली उन्हीं 5 वर्कर्स की तरफ दौड़ रही है, लेकिन इस बार एडम कहाँ खड़ा हुआ है? ऊपर एक ब्रिज है, वहां खड़ा हुआ है. कहाँ पे? वो ब्रिज कहाँ है? ट्रॉली जहां जिस रास्ते से आ रही है और जिन लोगों की तरफ जा रही है उसके बीच में खड़ा हुआ है. उसके साथ एक अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि इतना मोटा है, अगर एडम उसको धक्का दे दे और वो आदमी नीचे गिर जाए तो वो ट्रॉली को रोक लेगा और 5 लोग बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा. वहां पर भी एक आदमी मर रहा था ट्रैक बदलने से, यहां वो खुद धक्का देगा. आगे पढ़ते हैं. द ट्रॉली प्रॉब्लम हाईलाइट्स अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन two schools of moral thought. The utilitarian perspective dictates that most appropriate action is the one that achieves the greatest good for the greatest number. Meanwhile, contradictory connector, meanwhile the deontological perspective asserts that certain actions like killing an innocent person are just wrong even if they have good consequences. But utilitarian is a logical fallacy explains ERP. So ERP might be a person. ठीक है. अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रॉली प्रॉब्लम जो है एक बहुत बेसिक मुद्दे की बात उठा रही है. क्या बात उठा रही है? 2 मॉरल थॉट के जो लोग सोचते हैं, 2 मॉरल थॉट. यूटिलिटेरियन व्यू एक है जो ये सोचता है कि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटपुट किस चीज में है, हमको वो चीज करनी चाहिए. दूसरा है डियोंटोलॉजिकल व्यू, वो क्या कहता है? मैक्सिमम वैक्सिमम गया भाड़ में, हमको सबको बचाकर चलना है, चाहे वो एक छोटी सी चीज क्यों ना हो. उसके लिए हम डेलिबरेटली किसी को धक्का नहीं दे सकते. आगे बढ़ते हैं. लेकिन यूटिलिटेरियन इज अ लॉजिकल फैलेसी एक्सप्लेन्स अप. मतलब अर्प क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटेरियन जो है लॉजिकली फ्लॉड है. अभी हमने लॉजिकल फैलेसी की बात की थी थोड़ी देर पहले, लॉजिकली फ्लॉड है. आगे बढ़ते हैं. साइकोलॉजिकल रिसर्च शोज दैट इन फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम मोस्ट पीपल अग्री विद यूटिलिटेरियंस, डीमिंग इट मॉरली एक्सेप्टेबल टू फ्लिप द स्विच, किलिंग 1 to save 5. But in the second version of the problem, people lean deontological and believe it's not acceptable to push a stranger to his death, again killing 1 to save 5. What can explain this discrepancy? साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या बता रही है कि जब एडम ने स्विच बदला था और ट्रॉली दूसरे रास्ते पर चली गई थी, वहां पर भी एक आदमी मरा था, वो उससे अग्री करते हैं.
लेकिन वहीं पर एडम किसी को धक्का दे दे, मोटे आदमी को, नीचे गिर जाए, मर जाए ट्रॉली की वजह से, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। समझ रहे हैं? उस चीज को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि उनका मानना है कि किसी को जबरदस्ती मार देना सही बात नहीं है। साइंटिस्ट आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट think that our moral intuitions evolved to make us good social partners because we learn from a very young age that violence towards others is typically punished, or moral intuitions tell us it's wrong to take actions that physically harm the others. So in versions of the trolley problem that involve physical contact, like the footbridge case, harming one to save many is generally less acceptable than in versions that do not involve such contact, like the switch case. साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हमको बचपन से ही दो तीन चीजें सिखाई जाती हैं कि भैया किसी को मारोगे पीटोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है, गलत चीज है, गंदी बात है। तो होता क्या है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी को धक्का देने की बात आती है फिजिकली, हम उस चीज को ना बिलीव करके, वहां पर भी एक आदमी मर रहा है, हम उसके तरफ ज्यादा लीन इन नहीं होते हैं। जबकि हम स्विच, मैंने तो खाली स्विच बदला था, वो अपने आप मर गया तो मैं क्या करूं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटिंग अदर्स एज इंडिविजुअल्स विद देयर ओन राइट्स, wishes and needs rather than simply objects to be used at will is a key aspect of being a good social partner, and there is evidence that people strongly distrust those who use others as a means to an end. Our moral institutions seem to accord with this principle. अब होता क्या है कि भैया हम लोग क्योंकि सोशल पार्टनर हैं तो हम ये समझते हैं कि दूसरों को भी उनके नीड्स, विशेस, राइट्स हैं उनके पास भी, वो उनको एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए, राइट। और एविडेंस भी ऐसा बताता है कि लोग ऐसे लोगों पे बहुत कम भरोसा करते हैं जो लोग दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके अपना काम बनाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं वैसे दुनिया में, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो हम लोग भी समझते हैं कि ऐसा होता रहता है, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Critics of the trolley problem say it is too unrealistic to reveal anything important about real life morality. लोग जो ट्रॉली प्रॉब्लम के क्रिटिक्स हैं, मतलब जो ट्रॉली प्रॉब्लम के विरोधी हैं, वो ये बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन असली जीवन में आना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, ठीक है। बट द राइज ऑफ ड्रोन्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स मेक्स द डिलेमा परहैप्स मोर रेलेवेंट दैन बिफोर। फॉर एग्जांपल, शुड अ सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ इट्स पैसेंजर इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस? Here too, we want other people's car to maximize the number of lives saved, but think our own car should protect us at all costs. As our technologies become increasingly capable of making moral decisions, understanding our own moral intuitions becomes all the more crucial. अब हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे ड्रोन्स, कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार की चीजें बढ़ती जा रही हैं, अब हो क्या रहा है कि ये वाली समस्या एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम बन रही है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार में आप बैठे हुए थे, सामने बहुत सारे पैसेंजर्स आ गए, तो कार को क्या करना चाहिए, आपको बचाए या बहुत सारे लोगों को बचाए? अगर कार आपकी, आप बैठे तो आप चाहेंगे कि आपको बचाए। अगर आप बाहर खड़े हैं तो आप ये बोलेंगे छी 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 उसने गलत किया, इतने सारे लोगों को नहीं मारना चाहिए था, एक आदमी मर जाता तो कोई समस्या नहीं थी। तो हमारी मोरालिटी पर क्वेश्चन उठता है, इसलिए क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो हमको अपनी मोरालिटी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। इसमें लिखा है ना, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन मॉरल इंट्यूशंस बिकम्स ऑल द मोर क्रूशियल, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The trolley dilemma and its variations confirm all the following except even when people agree they may vary in their justification in the action they defend. क्या हम ये कह सकते हैं अपने पैसेज से? बिल्कुल कह सकते हैं। ट्रॉली प्रॉब्लम, यूटिलिटेरियन व्यू। नेक्स्ट, most people approve of some actions that cause harm, yet other actions with the same outcome are not considered permissible. Utilitarian view again, कि भैया मैंने तो खाली स्विच बदला था, अब वो मर गया तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने किसी को जानबूझकर धक्का देकर नहीं मारा, ये वही पॉइंट कह रहा है। थर्ड, there is a conspicuous difference between logical and emotional side. That means कि logically
चीजें अलग हैं, इमोशनली चीजें अलग हैं. यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजिकल व्यू, दिस इज ऑल्सो देयर इन द पैसेज. सो अवर आंसर बिकम्स नंबर 4. मुझे 4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम. The harm done to someone is a means to achieve an end. This is nowhere given in the passage, so that is why we can say that this is our answer. Let us move to the next question. Which of the following reason justifies that people are less likely to push the fat man than to flip a switch? People have been morally conditioned to distinguish between good and बैड. इज इट ट्रू? क्या हमारा पैसेज ये कह रहा है? नो. पैसेज ये बोल रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में हमें धक्का नहीं देना, हमें ये नहीं करना, हमें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए. नॉट गुड एंड बैड. वी हैव बीन ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू सी वेदर वील गेट पनिश्ड और नॉट. उसी हिसाब से हम, और सोशल पार्टनरिंग की वजह से हम लोग अपने डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द इंक्लिनेशन टू मेक अ मैथमेटिकल कैलकुलेटेड डिसीजन. मैथमेटिकल कैलकुलेटेड डिसीजन अगर होता तो हमारे पास 2 व्यूज नहीं होते. थर्ड, वी आर बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम टू हैव इमोशनल एवर्जन टू डिलीवरिंग हार्म पर्सनली एज अपोज टू इम्पर्सनली. मैंने किसी को जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैंने तो खाली स्विच बदला था, अब वो अपने आप मर गया तो मैं क्या करूं. दिस माइट बी अवर आंसर. याद रखिए ऑप्शन इसमें भी हमको सारे पढ़ने चाहिए. द इमोशनल एंगेजमेंट ऑफ पीपल प्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स विद अ डिलेमा. ये तो मान लिया, लेकिन इमोशनल एंगेजमेंट ऑफ पीपल, ये फैट मैन वाली सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है ना. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट deontological ethics are concerned. Deontological ethics are consequentialist. मतलब कि मेरे को consequences से मतलब है. I want results, not the process. For them, the worth of an action lies in its consequences. लेकिन याद करिए, ये तो यूटिलिटेरियन कह रहा था कि भैया जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो हमको वो काम करना चाहिए, तो कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस कौन कर रहा है? यूटिलिटेरियन, नॉट डियोंटोलॉजिकल. सो दिस कैन बी अवर आंसर. सेकंड, द फुटब्रिज केस इन्वॉल्व्स यूजिंग अ पर्सन एज अ मींस टू एन एंड. दिस इज ट्रू. दिस इज गिवन इन द पैसेज. मोटे आदमी को गिराएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा. Third, some philosophers see no relevance in intuitions when it comes to making moral judgments. Critics ने बोला है ना कि इन दोनों का रियल लाइफ में कोई सिचुएशन जरूरी नहीं है कि ऐसी आए तो उससे इंट्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता. Fourth, utilitarian philosophers have traditionally given little importance to intuitions. Correct. They have only and only given importance to consequences. Benefit सबसे ज्यादा जिसका जिसमें होगा वहां पर यूटिलिटेरियन व्यू विल बी मोर इनक्लाइंड. चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एसेंस ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखते हैं. ये critics of the trolley problem say it is too unrealistic to reveal anything important about real life morality, but the rise of drones and self-driving cars makes the dilemma perhaps more relevant than even before. For example, should a self-driving car protect the life of its passengers, even at the expense of a great number of pedestrians? Here too we want other people's cars to maximize the number of lives saved, but think of our own cars should protect us at all costs. Our technologies become increasingly capable of making moral decisions. Understanding our own moral intuitions becomes all the more crucial. Fourth question पर चलते हैं. Options देखते हैं. The trolley problem tells nothing useful about morality. Not all questions can be solved simply through developing more sophisticated engineering. The onset of technology reveals our inconsistent moral intuitions. Technologies have overpowered our decision making capacity. देखिए आंसर हमारा क्यों? क्योंकि हम लोग मोरालिटी की बात कर रहे थे, हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहे थे, उसकी वजह से हमारी मोरालिटी हिली हुई है और उसी की वजह से हमको अपनी मोरालिटी वापस से देखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए. सो दैट इज व्हाई दिस विल बी आवर आंसर. द ऑनसेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिवील्स आर इनकंसिस्टेंट मॉरल इंट्यूशंस. क्यों? क्योंकि जब कार में मैं बैठा हूं तो कार मुझे बचाए, लेकिन जब मैं कार के बाहर हूं तो कार फिर भी मुझे बचाए. क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हो सकता हूं जहां जिनको कार उड़ाती हुई चली जाए. तो ये चीज याद रखिए.
तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, आरसी में दीज वर द फ्यू कॉन्सेप्ट, एंड आगे एक और क्लास हम लोग लेंगे जिसमें आरसी के ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विद 3 पैसेजेस और 4 पैसेजेस, जो भी टाइम अलाउ करेगा उस हिसाब से हम लोग उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग PYQ 6 slots, that is 2023 1 to 3 and 2024 1 to 3 VARC section. So please stay tuned in for other videos and be updated about the videos. Moreover, next सेशन में आरसी के जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसके अलावा भी 2 क्वेश्चन हर आरसी में आई विल बी गिविंग यू, for which you can answer in the comments, and that we will discuss in the later on classes. Thank you so much. Please stay tuned in with us. Thank you.